Very good afternoon to all of you. I extend my sincere and hearty welcome to all the participants to this 40th session of the pre-examination training for limited departmental audit and accounts examination for ICAS. Today, there is a change in the session plan. As per the original plan, we were having a different session. But today, one very important session will be delivered by the most resource person and expert in this field. The session is General Principles and Rules of Audit, and the session will be delivered by Sri Grish Chandra Prasad sir. He is the very experienced and he is the very befitting resource person for this session. Now all the participants, you are requested to pay attention to this session. And as we have discussed several times, this subject, General Principles and Rules of Auditing, carries 100 marks. So that means it is a very important topic. Now, without wasting time, I invite Sri Girish Chandra Prasad sir to conduct the two-day session on auditing. Now it is over to GC Prasad sir. Thank you very much. Am I audible? That's all? Yeah, sir. Yeah. Okay, fine. So without wasting time, I am directly coming to the slides. Yeah, so this is the second session on this topic. And in this second session, we will cover some very important part, whatever was left from the first topic. And this is in one sequence. एक के बाद एक चला आ रहा है. आगे भी कुछ topics और cover करने होंगे, तो we might have one more session on this topic. To start with, last time मैंने बताया था कि जो major content last time थे, ये दो topics रह गए थे. ये general checks हैं, and on the basis of these checks, the total system of audit works. So this is very important. So first of all, we will cover these two topics: checks of a store and a stock account and commercial transactions. The second, supplementary audit instructions are there. देखिए, basically supplementary audit instructions हैं क्या? अगर मैं इसके पहले वाले slide पे जाऊं, here, these are common principles. And this one is compilation of different guidelines जो अलग अलग जगहों से इशू हुए हैं ICR के लिए. ICR ने अपने guidelines. So this is the difference between the two. And यहाँ पे हम देखेंगे कि a lot of topics are there. 14 topics are there. Supplementary topics are there. It is not possible to cover all topics. So we will select some very important topics जहां से कि questions आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि the total focus is on examination. And out of that, today I have selected two topics, these two topics. In the next section, I will try to cover more topics over that. To start with, first of all, let us see check of a store, a stock account, including outsourcing, etc. So here, सबसे पहले हम देखें कि if we call some expenditure on expenditure of purchase, this includes two kind of expenditures. एक concept है, इस चीज को समझें. Check of expenditure for purchase and check of expenditure on disposal of the store. So acquisition and disposal दोनों का expenditure अगर हम मिला दें, तो एक stock, एक store का total expenditure बनता है. So in individuality, ये कहना है कि just वो item खरीद लिया गया तो वही store का expenditure है, तो नहीं. It has two parts, cost of acquisition and cost of disposal. अगर disposal irregular तरीके से हुआ है, तो this is equivalent to illegal appropriation of public money. So this is a very serious issue.
कहीं भी किसी भी स्टॉक का डिस्पोजल रॉन्ग तरीके से नहीं होना चाहिए। दीज चेक्स, देखिए इन चेक्स का कंटेंट क्या है, स्टोर एंड स्टॉक के जो चेक्स का कंप्लीट ये है, क्या है वो हम एक बार देख रहे हैं इसमें। पहला है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रेगुलेशन एंड दूसरा है एफएनएओ को क्या क्या चेक करना होता है। इसमें मैं बता दूं एफएनएओ को जो लिस्टेड है ऑडिट मैनुअल में 20 पॉइंट्स हैं जो स्टोर एंड स्टॉक के बारे में चेक करने होते हैं। डिटेल डेलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है, मैं टॉपिक टच करता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट कैप्सूल्स उसके टच करता जाऊंगा केवल यहाँ पे। सबसे पहले तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर को या ऑडिट सेक्शन को, मैंने ये भी कहा था कि जहां मैं ऑडिट सेक्शन कहूं फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर समझिए, जहां फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर कहूं ऑडिट सेक्शन समझिए। दे आर फॉर दिस सेशन दे आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर। सो यहाँ पे सबसे पहले तो एफएनओ या ऑडिट सेक्शन ये चेक करता है कि जो कंट्रोल मेजर्स हैं स्टोर के लिए, स्टोर के रिकॉर्डिंग का जो भी सिस्टम है, क्या वो एप्रोप्रिएट है। अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके हिसाब से उसको एप्रोप्रिएट बनाएगा, नहीं एडिशनल रेगुलेशंस या रूल्स जारी करेगा उसके लिए। ठीक है, अब वो किस किस चीज के लिए इसको चेक करता है। रिसिप्ट के लिए, स्टोर में कोई आइटम आया, वो इशू हुआ, वो रखा जा रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, सेल, स्टॉक टेकिंग, and for all those purpose, first of all, the audit section checks whether the control measures are appropriate or not. Once this is checked, okay, the measures are appropriate. Now comes the role of what checks it applies. I have already told that there are 20 such checks. First is check of acquisition of a store. Acquisition of a store should be as per the GFR. Lowest tenderer से ये buy किया जाना चाहिए. And if it is not bought from the lowest tenderer, then what will happen? Some justification will be there and approval of the competent authority will be there. ठीक है, rate paid, whatever rate we will pay, the rate will be as per the contract or as per the supply order. Certificate of quality and quantity, that should be recorded on the bill by the officer who is proposing for the payment, that is by the person who is certifying that, and after that that is verified by the DDO also, हम बाद में देखेंगे। Purchase order should not split up to avoid necessary sanction from a higher authority. यहाँ पे मेजर मिसकंसेप्शन है ऑडिट में भी और हमारे टोटल सिस्टम। हमारे टोटल सिस्टम का मतलब है, मैं केवल आईसीआर की बात नहीं कह रहा हूँ, एनीवेयर वी स्पीक, इस पर्टिकुलर नॉर्म को, ये जीएफआर से लिया हुआ नॉर्म है, इस पर्टिकुलर नॉर्म को गलत तरीके से लिया जाता है। समझिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्प्लिट इन परचेज ऑर्डर की बात नहीं कह रहा है। हम जैसे ही ये बात कहते हैं हमारा दिमाग सीधा जाता है कि वो ओपन टेंडर की चीज को लिमिटेड टेंडर में तोड़ दिया गया या लिमिटेड टेंडर को कमिटी से परचेज कर लिया गया। जी नहीं, दिस रूल एटलीस्ट डज नॉट स्पीक्स अबाउट दिस थिंग। दिस रूल स्पीक्स अबाउट क्या वो परचेज पर्सन ए को सैंक्शन करना था और पर्सन ए को 10 लाख का ही पावर मिला हुआ था या 25 लाख का ही पावर मिला हुआ था। क्या उसने ऐसा किया कि इस 25 लाख के अंदर 2 बार सैंक्शन कर दिए, 15 लाख ये कहते कि भाई दोनों मिलाकर के 30 हो रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल तो 15 ही है। सो उसने हायर अथॉरिटी से सैंक्शन अवॉइड किया, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग लिमिट को ले आया वो लिमिटेड टेंडर के अंदर। सो कहने का मतलब है बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है वहां एप्लीकेबल है जहां कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी परचेज प्रोसीजर अवॉइड करने के लिए नहीं तोड़ रहा है, सैंक्शन हायर अथॉरिटी से अवॉइड करने के लिए तोड़ रहा है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम आगे देखेंगे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक लिमिट होती है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को कि एक्स लिमिट तक आप सैंक्शन करेंगे। किया जाता है 6 महीने तक या 3 महीने तक उनसे सैंक्शन करा लिया जाता है, बाद का एक्सटेंशन हेडक्वार्टर को भेज दिया जाता है, जो कि फॉरवर्ड किया गया है ऑडिट मैनुअल में भी। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। वेदर टेंडर इंक्वायरी, डिटेल्स ऑफ बिड अवार्ड, ये सारे के सारे आपके वेबसाइट एंड पोर्टल्स पे आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, यदि किसी भी परचेज में इन जनरल जो इंपोर्ट्स होते हैं इनबिल्ट ट्रेनिंग कंपोनेंट होता है, इफ देयर इज एनी इनबिल्ट ट्रेनिंग कंपोनेंट, एक सर्कुलर यहाँ पे रिफर है आईसीआर का, and as long as I remember the content of this circular is
that who will go on training will not essentially be the indentor. The person can other than indentor also, and that will be decided by the institute. Perhaps the content यही है, आप एक बार रिफर कर लेंगे उसको. इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है. उसके बाद क्या है कि एमएसएमई के बारे में कुछ ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं. एक चीज मैं और बताऊं, ये जो 20 चेक्स हैं, इफ यू विल रिफर द ऑडिट मैनुअल, हर चेक के बाद एक सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है. ये सम रेफरेंस लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं कम्बरसमनेस बचाने के लिए प्रेजेंटेशन के. इट इज एडवाइजेबल कि आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, यू रिफर दैट. एमएसएमई से रिलेटेड प्रोविजंस दैट इज टू बी अप्लाइड. यदि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन है कहीं भी किसी भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में विच इज वेटेड बाय काउंसिल, देन council's approval and concurrence of finance officer both is essentially required. Hiring of technical manpower on short-term contract, इसके लिए there are different guidelines from ICR which is to be implied. Next है, देखिए पूरा का पूरा procurement 3 manuals से guide होता है. There are 3 manuals. First is manual for procurement of goods and services, second is for works, and the third one is for consulting. सो ये तीनों मैनुअल्स जहां एप्लीकेबल होंगे वहां फॉलो किए जाएंगे. यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि यदि वी आर बाइंग गुड्स और सम कंटिंजेंट वर्क इज देयर, मतलब मेनली वी आर बाइंग गुड बट थोड़ा कंपोनेंट वर्क्स का है, तो इसके लिए वर्क्स के गाइडलाइन नहीं लगेंगे, गुड्स के ही गाइडलाइन लगेंगे. अगर कंटिंजेंट वर्क, कंटिंजेंट सर्विस इज देयर, समथिंग लाइक यू कैन से क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया मटेरियल के साथ, but labor component is 90%, 10% material component is there. तो यहाँ पे हायरिंग के लिए सर्विस का ही नॉर्म लगेगा, गुड्स का नहीं लगेगा. सो कंटिंजेंट वर्क, कंटिंजेंट गुड्स और कंटिंजेंट सर्विसेज, इन दोज मेन नॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग साइंड. हायरिंग ऑफ सिक्योरिटी, हायरिंग ऑफ सिक्योरिटी में मैंने जैसा अभी बताया कि ये स्प्लिट नहीं होना चाहिए कि जितनी लिमिट है अप टू दैट लिमिट द डायरेक्टर ऑफ द यूनिट विल सैंक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल सेंड द कॉन्ट्रैक्ट टू ICAR. नेक्स्ट वन इज इंगेजिंग कैजुअल लेबर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फार्म लेबर, आउटसोर्सिंग ऑफ फार्म वर्क, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा, वॉट एवर इट इज, लेबर लॉ शुड बी फॉलोड. यहाँ ऑडिट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेबर लॉ बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना है, बट दैट इज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर और उस पर कोई कंप्लेन तो नहीं है. एटलीस्ट दैट पोर्शन द ऑडिट विल सी. ठीक है, जब भी कोई वायलेशन होगा दैट विल बी इन्फॉर्म टू द डायरेक्टर. नील सर्विस चार्ज इज नॉट अलाउड इन एनी लेबर कॉन्ट्रैक्ट. वाई लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कहीं भी अगर प्रॉफिट अलग लिखा हुआ है, सर्विस चार्ज मीन प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी नील. देखने में लगता है कि भाई क्या उसमें क्या, व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस यदि नील पे हम ले लिए तो. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का एक कंडीशन होता है कि गिव एंड टेक, कहने का मतलब किसको क्या मिलेगा, किस पार्ट की क्या लायबिलिटी होगी, ये क्लियर डिफाइन होना चाहिए. अगर ये एब्सेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. आई रिपीट, जब तक दोनों पार्ट की लायबिलिटी नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से. बिकॉज ऑफ दैट जीरो सर्विस चार्ज के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन एडवांस. व्हाट इज दिस? दिस इज यूजुअली फाउंड इन वर्क्स. मोबिलाइजेशन एडवांस मीन टू स्टार्ट अ वर्क if the contractor wants that some advance is to be given and that is agreed in the contract. In that case ICR का एक सर्कुलर है विजिलेंस डिपार्टमेंट का, that will be applicable. Negotiation with lowest bidder यदि unavoidable circumstances में करना है तो उसके लिए भी ICR का एक सर्कुलर है, that will be referred. Similarly, proposal related to procurement of works के रिलेटेड में एक दूसरा सर्कुलर है, सो उसको भी रिफर किया जाएगा. सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक मोड एंड सीलिंग डिसाइड कर रखा है कंप्यूटर्स परचेज के लिए. ठीक है, अगर प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क स्टेशन या वर्क बुक, कंप्यूटर वगैरह वगैरह का है
तो इसमें एक नॉर्म भी है और एक सीलिंग भी है. बोथ इज टू बी ऑब्जर्व कि इससे ज्यादा लिमिट का बाई नहीं हो सकता है और इसी मीन में बाई होगा. बैंक गारंटी, अगर बैंक गारंटी का प्रोविजन है तो बैंक गारंटी शुड बी परफेक्ट इन कंडीशंस. परफेक्ट का मतलब ये इरिवोकेबल होना चाहिए एंड अनकंडीशनल होना चाहिए. मतलब ये कंडीशन पूरा होगा तो हम बैंक गारंटी को सीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बैंक गारंटी अनकंडीशनल ऑन डिमांड बैंक गारंटी का पैसा हमें मिल जाना चाहिए, पहली चीज ये होनी चाहिए. और एक बार बैंक गारंटी खोलने के बाद जो कोई भी बैंक गारंटी दे रहा है, he cannot cancel the bank guarantee. These two things should clearly be mentioned in the bank guarantee, and this should be sent to the finance officer at the time of payment, etc. अगर indent, while submitting the indent for procurement of good, a specification should clearly be mentioned, ठीक है, and a certification should be given by the indenter that the specification is generic. This certificate is very essential because specification का generic होना, that is a requirement of GFR in the chapter wherever a specification portion is written. If some expensive equipment is procured, first thing director will ensure कि proper agreement or contract उसका sign हुआ हो. यहाँ director word is important. Director have to ensure. Why director have to ensure this? Because it is the duty of the procuring authority. Who is procuring authority? The person who is procuring, who is sanctioning the amount, he is procuring authority. So director have to ensure that the contract has been signed. उसी तरह से अगर केमिकल और मेडिसिन वगैरह परचेज हो रहे हैं, देन ये देखना जरूरी है कि जो केमिकल एंड मेडिसिन हमारे पास आ रहे हैं, ऑन द डेट इट इज रिसीव्ड, इट शुड हैव वैलिड यूज पीरियड. कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि हमारे पास आए और 1 मंथ के बाद ही वो एक्सपायर कर रहा. Sufficient validity period of use for those chemicals and medicine should be there. Next one is AMC or annual rate contract. इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन हुआ होना चाहिए. बट ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है कि द फॉर्म गिव्स अस द फॉर्मेट कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं. दैट फॉर्मेट ऑलवेज सेव the interest of the form. You have to check whether it is saving your interest or not. If not saving, then you will say that my format will be applicable and you will design it and get it signed. The FNAO will ensure जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस आईसीआर से टाइम टू टाइम निकल रहे हैं, स्टोर अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए. प्रॉपरली का मतलब है रिसिप्ट, इशू, क्लोजिंग बैलेंस, ऑल दोज थिंग्स शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड. कैरिंग कॉस्ट ऑफ द स्टोर, कैरिंग कॉस्ट ऑफ द स्टोर, इट शुड बी है क्या ये कैरिंग कॉस्ट? सबसे पहले ये समझते हैं. स्टोर के कॉस्ट का 2 मेजर कंपोनेंट है जब तक स्टोर यूज में है. फर्स्ट है कि हम स्टोर को एक्वायर कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट लग रहा है, उसको खरीदने में, लाने में, फ्लाइट है, इंश्योरेंस है, डाउनलोडिंग है, रखने. सेकेंड टाइम कॉस्ट है, उसको हम जितने दिन रख रहे हैं उसको मेंटेन करना पड़ रहा है. एंड वट एवर द कॉस्ट इज इन्वॉल्व, इवन द डेप्रिसिएशन, दिस ऑल्सो इज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टोर. सो जो भी स्टॉक हमारे पास हो वो एप्रोप्रिएट हो, सो एज कैरिंग कॉस्ट को घटाया जा सके. अगर हम ज्यादा स्टोर रखेंगे तो एक तो मनी हमारा लॉक होगा कॉस्ट के फॉर्म में, एंड द सेकेंड उसको हमको मेंटेन भी करना पड़ेगा. सो एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द स्टोर शुड बी देयर. इफ अ न्यू इक्विपमेंट और मशीनरी इज टू बी बॉट, this is essential that before signing the contract or before calling the item for delivery, सारे प्री कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने चाहिए. एक एग्जांपल से समझते हैं. We have to buy one genset. So when the genset will come, we will have to make ready a platform. Over that it will be installed. Some electric connection will be required. At least power cable and all that will be required. So this should be ready before the material is delivered to the site. And if any equipment is not installed within a period of 3 months, that must be reported to the director. And if the period is 6 months, then it should be reported to the council. Writing off a store,
This should be done by the competent authority, and if an AO will find out any defect, the main purpose of writing this line is that it is the duty of the audit to find out any defect in writing off which requires attention. जैसे कि कुछ certifications की जरूरत होती है, whether the item is unserviceable, and if our expert has written or the inventor has written it has become unserviceable, or it is written that it is outdated, this should be confirmed by some expert, and once confirmed the certificate should be recorded, and after that the item will be written. Similarly, unserviceable store. Unserviceable store जो है स्पेस भी घटता है, लेबर लेता है, डिस्टोरिएशन होता है टाइम के साथ. So a record of that is prepared in form 4. ये form 4 audit manual के last में है. You can see the its format, and in this format a report is prepared, and on the basis of that writing of effort is started. Annual stock verification and certification. This is done by head of the department, a store officer or DDO, and a report or certificate in this regard is given in April to the finance section, so as this report, the summary of this report may be reflected in the annual account. Annual account के schedule 5 में जब हम schedule 5 and also in current asset, fixed assets and current assets, schedule 7 I think, 5 and 7 दोनों जगहों पे जरूरत इसकी पड़ती है, और दोनों जगहों के लिए हमें स्टॉक वेरिफिकेशन का रिपोर्ट चाहिए होता है. वेरिफिकेशन के समय क्या क्या देखते हैं, या ऑडिट की क्या ड्यूटी है स्टोर वेरिफिकेशन के लिए, ये टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समरी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं रिकॉर्ड हो रही है, कहा अकाउंट्स में सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन विधि जो कि अडॉप्ट किया जा रहा है अप्रोप्रिएट है कि नहीं. यूजुअली देयर इज अ प्रिंसिपल कि कोई भी फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन जिसके नाम पे वो इशू है उसके प्रेजेंस में ही किया जाए, बिकॉज समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू सी वेदर इट इज रनिंग और नॉट. द पर्सन या यदि इक्विपमेंट है तो ही विल रन इट आल्सो फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग. So it is essential. So even the system of, if the system of verification is not appropriate, this may be pointed out by the audit. Such verification should be carried out by some independent person. मतलब inventor को ही verification का काम ना दे दिया जाए, या the person possessing the store, stock color को ही काम ना दे दिया जाए stationery verify करने का. So this task should be given to some appropriate person. If some priced account is maintained, price account का मतलब है कि यदि आइटम का टोटल कॉस्ट टाइम टू टाइम लिखा जा रहा है, then it should be written, it should be observed that this price is appropriate. Yeah, that is, this price is reasonably accurate, and इस प्राइस को टाइम टू टाइम मार्केट प्राइस से कंपेयर करना चाहिए. इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नॉर्म है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वहां से हेल्प लिया गया है. दिस इज रिटन इन जीएफआर आल्सो कि जब भी हम स्टॉक का प्राइस निकालें, प्राइस ऑफ एक्विजिशन एंड मार्केट प्राइस दोनों को लें. बट one thing is also important, if your stock is not very high, which we presume that in ICR it is there, if the stock is not very high, then the acquisition cost is considered to be the real cost of the inventory. Total acquisition value of the asset. देखिए ये particularly this portion, this total portion right from here to here, this total portion is concerned with our accounting part. Value of the asset जो होता है, value of the asset, कोई भी asset हमने लिया, एक पोर्शन हमने पे कर दिया, एक पोर्शन हमने पे नहीं किया है, देन जो पोर्शन हमने पे कर दिया है वो फिक्स एसेट में चला जाएगा या वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, और जो पे नहीं किया है वो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा. कहने का मतलब है अगर एक इक्विपमेंट 10 lakhs का है, 7 lakhs we have paid, item has been delivered, 3 lakhs is still to be paid when the installation will be over, then this 3 lakhs will be the part of the liability, current liability, and this 7 lakhs will be the part of fixed asset or works in progress. Asset value is to be adjusted for depreciation or disposal of assets. So कहने का मतलब है कि जब भी depreciation और कोई एसेट अगर राइट ऑफ करते हैं तो उसका डिस्पोजेबल वैल्यू मिलता है, या डिप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड
Basically, this total part is the part which we reflect in our accounting format at appropriate place. कहीं कहीं करंट एसेट में कहीं होगा, कहीं फिक्स एसेट में होगा, कहीं आपको करंट लायबिलिटी में होगा, कहीं फिक्स लायबिलिटी. On these parts, these details are mentioned. Next check है ये complete check. यहाँ the check for a store and a stock is over. Commercial transaction. देखिए, in general, our activities are not commercial activities in general, but a part of our activity are commercial in nature, like publication. Publication division जो publication करता है वो priced publication है. Revenue is collected over that. Seed production, sometimes equipment manufacturing. So all these parts are commercial activity. Accounting standard ये कहता है कि till the moment your total activity is non-commercial, you are not required to follow the commercial norm of preparation of profit and loss account. समझिएगा, मैं profit and loss account कह रहा हूँ. By profit and loss account I mean to say not the income and expenditure account. ये तो हम बनाते ही हैं. तो यदि आपका कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑल राइट. लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, उस एक्टिविटी के लिए. सो जैसे ही हम बात कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगते हैं, बिकॉज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही लगेंगे. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस हमने कहा, कॉमर्शियल नॉर्म्स जो लगते हैं अकाउंट प्रिपरेशन में वो लगने लगेंगे और उस नॉर्म के हिसाब से अकाउंट तैयार होगा. कहने का मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ में, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरे इंस्टीट्यूट के लिए बनेगा, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट वाज द इंपॉर्टेंट पोर्शन. इसके लिए प्रॉपर कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे के सारे प्रिपेयर करने होते हैं. इस अकाउंट को परफॉर्मा अकाउंट कहते हैं, परफॉर्मा बेसिस पे बनाया जाता है और ये जनरल अकाउंट के बाहर होता है. मतलब हमारा जो एनुअल अकाउंट है उसके अलावा इसको बनाना पड़ता है अलग से. ठीक है, जो यहां भी लिखा हुआ है कि अलग से इसको बनाना पड़ेगा. कॉमर्शियल लॉ एंड प्रैक्टिसेस लगेंगे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंसर्न के लिए जो लगते हैं. बट एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये कॉमर्शियल नॉर्म जो है हमारे अपने गवर्नमेंट अकाउंट को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है. सो हमको बार बार ये भी टैली करके देखना है कि हमारे अपने अकाउंट से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कहने का मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसका कंप्लीट एक्टिविटी तो अलग बनाएंगे, लेकिन इसका बैलेंस पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टेड समवेयर इन योर बैलेंस शीट. वेयरएवर इट विल बी रिफ्लेक्टेड, दिस विल बी इन कंप्रोमाइज, इन मैरिज विद ईच अदर. द मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है इस तरह के कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन चेक का? देखिए, अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, शायद फर्स्ट सेशन में ही डिस्कस करना चाहिए. तो व्हाट इज ऑडिट? अगर सोचे कि ऑडिट है क्या, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज बेसिकली अ कंफर्मेशन दैट स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रैक्टिस्ड एंड अ मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं हो रहा है और कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. ये तीन पार्ट है. इसमें जो रिजल्ट निकलता है ऑडिट का वो या तो एरर में निकलता है या फ्रॉड में निकलता है. ऑडिट हमेशा सजेस्ट करता है कि ये चीजें गलत हो रही है, इसको सुधारिए, या ये चीजें गलत हुई हैं, सुधर नहीं सकती हैं, यहां कुछ फ्रॉड एंगल दिख रहा है. सो दिस इज द पर्पज. सो कॉमर्शियल ऑडिट का भी यहाँ वही सेम पर्पज है, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना एंड ट्रू पिक्चर देना टोटल एक्टिविटी का कि हाँ भाई ये एक्टिविटी चूंकि हमारी प्रॉफिट एक्टिविटी है, हमको चालू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए. कैन वी क्लोज दैट एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी मेनली वेरीफाइज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल. वैल्यूएशन ऑफ एसेट सही है कि नहीं है, रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन. डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस आर देयर. First in, first out, last in, last out, average pricing is there. So different methods are there. So
कौन सा मेथड हम ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, सही वैल्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है हमारे स्टॉक का, वो पूरा का पूरा देखना। बिकॉज कमर्शियल अकाउंटिंग की जब मैं बात कहूंगा तो वहां स्टॉक वेरिफिकेशन में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्टॉक है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से है कि नहीं, या कितना डेविएशन मार्केट प्राइस से। कम डेविएशन हो सिंपली लिखेंगे, ज्यादा डेविएशन हो तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है फिक्स एसेट से, कोई बैड डेप्थ तो नहीं है। बैड डेप्थ क्या है? बैड डेप्थ हम लोग बैंक के टर्म में भी सुनते रहते हैं, एनपीए, बैड डेप्थ। ये बैड डेप्थ का मतलब होता है कि हमने किसी को कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया, हमने किसी को कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया, और उस एडवांस पेमेंट में सपोज कीजिए कि हमको वो मटेरियल ही नहीं मिलने वाला है, फॉर्म बंद हो गया या फॉर्म कुछ बदमाशी कर रहा है, नाउ वी आर श्योर दैट वी विल नॉट गेट इट। तब हम कहते हैं कि दैट डेट हैज कन्वर्टेड इनटू बैड डेट, हमारा वो पैसा बर्बाद हो चुका है, एंड वी राइट इट ऑफ फ्रॉम आवर अकाउंट। तो वो उस तरह की सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सिमिलरली वर्कशॉप अकाउंट अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैंने बात की है, यदि आपके वर्कशॉप पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो सेम पैटर्न पे होगा। अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है देन व्हाट विल हैपन, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द वर्कशॉप। एवरीवेयर वी नो दैट वर्कशॉप इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। तो फॉर कॉस्टिंग पर्पस से एंड फॉर टैलिंग दिस कॉस्ट with our expenditure account, we prepare a proper account on the commercial basis so as the tally may take place. ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे यहाँ है तो हम ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है अगर हम वो बाहर से बनवाते तो क्या कॉस्ट आता है, और इसको कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक वर्ड है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, व्हाई दिस वर्ड इज हियर? दिस वर्ड इज हियर to indicate that we are in research activity. एक पीस आइटम या 2 पीस आइटम या रेगुलर प्रोडक्शन किसी आइटम का नहीं है तो हम बाहर के प्राइस से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू हैव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, इस तरह के कंपैरिजन को अवॉइड भी किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इफ पॉसिबल वर्ड इज देयर। या हम मान लीजिए कुछ नई टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, उसका प्राइस ही नहीं कंपेयर हो सकता बाहर से, देन व्हाट वी विल डू? Nothing. A proper justification will be written and that will be considered with due approval. ठीक है, now the performa account, similarly the performa account जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही चीज। अब हम आ जा रहे हैं सप्लीमेंट्री चेक्स, सप्लीमेंट्री ऑडिट इंस्ट्रक्शंस में। इसमें आज हम 2 देखने वाले हैं, चेक ऑफ बेसिक रिकॉर्ड्स एंड चेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चेक ऑफ बेसिक रिकॉर्ड्स, बिल एंड वाउचर्स। अब यहां से हम शिफ्ट हो रहे हैं, बिल एंड वाउचर्स कैसे आते हैं, क्या क्या चेक करना होता है, चेक कैसे काटा जाता है, कैश बुक कैसे लिखा जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सारे के सारे हम पार्ट देख रहे हैं। पहला तो है कि कोई भी विड्रॉवल गवर्नमेंट अकाउंट से फाइनेंस ऑफिसर एफएनएओ के पे ऑर्डर के बगैर नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड वाउचर? इसको क्लियरली समझना जरूरी है, बिकॉज आप एग्जाम दे रहे हैं। इफ यू विल राइट डाउन अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी एंड इफ इन द सेम सेंस इट इज कंसिडर्ड बाय द एग्जामिनर, you will have to face the loss of marks. So current terminology इसका समझ लीजिए। बिल इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जहां की स्पेसिफिकेशन, अमाउंट, ये सारी चीजें लिखी होती है, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही सिंपल रिसिप्ट फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है पैसा ड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट अकाउंट से। सो ये क्लेम है, इंडिकेटिंग कि ये क्लेम स्पेसिफिकेशन, मतलब ये क्लेम किस लिए किया जा रहा है एंड कितना अमाउंट है, बहुत सिंपल फॉर्म में ये ऑडिट को दिया जाता है। ठीक है, व्हेन पेड विद एविडेंस, यानी कि जब पे कर दिया गया और उस पेमेंट का एविडेंस हमारे पास आ गया तो वो बिल वाउचर बन जाता है। सो जस्ट डिफरेंस समझिए, जब तक वो क्लेम रहा तब तक तो बिल था। द मोमेंट इट इज पेड, और उस पेड का हमारे पास या तो एक्सेप्टेंस आ जाए, एक्विटेंस आ जाए,
या अगर ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं तो द मैसेज बाय द बैंक इटसेल्फ इज एन एक्विटेंस। अगर ये चीजें आ जाए तो इट विल बिकम वाउचर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि फॉर बायर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर आईसीआर पे कर रहा है, आईसीआर पॉइंट ऑफ व्यू वाउचर इज एक्विटेंस। ठीक है, सॉरी, हाँ, फॉर बायर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन एक्विटेंस एंड फॉर पे पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब है कि उसने रिसिप्ट दे दिया, वाउचर बन गया, इसका मतलब है कि उसने रिसिप्ट दे दिया। बिकॉज विदाउट रिसिप्ट वो वाउचर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, पेमेंट के प्रूफ के बगैर वो वाउचर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एवरी पेमेंट और वाउचर शुड बी ड्रॉन इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है, और प्रॉपरली रिसिप्टेड होना चाहिए। रिसिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर फाइनेंस इंडेंटर द पर्सन यूजिंग द आइटम, अगर लेबर है तो जिसको लेबर दिया गया है, इनके बीच में डीडीओ, हेड ऑफ द ऑफिस, इनके बीच में एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है कि हु विल सर्टिफाई, हु विल सर्टिफाई। सो इसका का पूरा आंसर यहां पे है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिट डज नॉट कमिट एट दिस स्टेज। रिसिप्ट एंड सर्टिफिकेट के स्टेज में ऑडिट कहीं नहीं आता है। कहने का मतलब है कोई स्टोर किसी को दिया गया, इशू किया गया, उसका रिसिप्ट लिया गया, इसमें कोई ड्यूटी ऑडिट की नहीं। कोई सर्टिफिकेट यदि दिया जा रहा है किसी बारे में, किसी क्लेम के बारे में, किसी पेमेंट के बारे में, तो इसमें कोई रोल नहीं है ऑडिट का। दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कोई भी उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, एंड डीडीओ, डीडीओ को तो काउंटर साइन करना है। देखिए, पेमेंट के सेंस में डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफाइंड है। ही ड्रॉज द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। वो एक ब्रिज है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में। एक प्राइवेट क्लेम को गवर्नमेंट फॉर्म में डाल करके वो पैसा ड्रॉ कर रहा होता है डिसबर्समेंट के लिए। सो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सारे डॉक्यूमेंट्स उसको 100% वेरीफाई करने हैं अपने, और ऑडिट केवल सर्टिफिकेशन की बेसिस पे जाता है। ऑडिट में रियल चेक, टेस्ट चेक होता है, 100% चेक नहीं होता है। बाद में हम इसमें भी देखेंगे कि इट इज ऑलवेज द टेस्ट चेक। सो सर्टिफिकेट देते समय डीडीओ को टोटली वेरीफाई करना है सारी चीजों। जैसे कि देखिए, कुछ चीजों में फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है यदि, तो हेड ऑफ द ऑफिस विल वेरीफाई, ठीक है। अब वो वेरीफाई करने के दौरान मैनेजर से साइन कराएं, किससे भी साइन कराएं, लेकिन वी विल सी दैट हेड ऑफ द ऑफिस हैव टू वेरीफाई दैट। द सेकेंड, टीएमए, हेड ऑफ द ऑफिस, या जिसको भी टीए बिल वेरीफाई करने का राइट दिया हुआ है। फॉर कंटिजेंसी अगेन हेड ऑफ द ऑफिस विल वेरीफाई, ठीक है। अच्छा, कंटिजेंसी के सेंस में हेड ऑफ द ऑफिस क्या वेरीफाई करते हैं? ही सर्टिफाइज दैट आइटम हैज already been received or this service has already been delivered, this was required, essentially required, and have recorded in appropriate stock or in service, whatever it is, because contingency है। हम आगे contingency का देखेंगे। contingency में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मटेरियल ही डिलीवर हो, सर्विसेज भी डिलीवर हो सकती है। सो स्टॉक बुक और सर्विस बुक, तो पहली चीज सबसे पहले कि सही में उसकी जरूरत थी, सही में वो काम हुआ है और वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है कि हेड ऑफ द ऑफिस विल सर्टिफाई दैट। फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट, ऑडिट को अब देखिए क्या चेक करना होता है। ये तो हो गया हेड ऑफ द ऑफिस की ड्यूटी है। फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में देखें, टीए में देखें, कोई दूसरा आइटम बाई हो रहा है तो देखें, एंड कंटीजेंसी में देखें। नाउ व्हाट ऑडिट चेक्स? ऑडिट चेक्स रिसिप्ट फ्रॉम द पे। अगर उसको कैश में या किसी और फॉर्म में दिया गया है तो उसका रिसिप्ट होगा, अगर नहीं दिया गया है तो एक प्री रिसिप्ट होगा। So this receipt includes pre-receipt also, certificate of DDO, and counter signature of controlling officer. ठीक है, if required, यदि टीए बिल है या कुछ दूसरा है तो काउंटर सिग्नेचर विल भी दे। अगर कंस्ट्रक्शन है वही, देन रिसिप्ट, मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट बुक पे काम है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, अगर लेबर भी था उसमें, इसलिए है ना प्लस एंड ऑब्लिक दिया हुआ है। लेबर है तो लेबर, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट लेबर था कि मटेरियल विल बी सेपरेट एंड लेबर विल बी सेपरेट, तो लेबर वगैरह की काउंटिंग सही है कि नहीं। रिसिप्ट ऑफ सप्लाईज एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क, एंड
करेक्टनेस ऑफ रेट, जिस रेट से वो चार्ज किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है पेमेंट के लिए, वो करेक्ट है कि नहीं. द नेक्स्ट वन इज फॉर कंटिजेंसी, सिमिलरली फॉर पे, फॉर लीव पेंशन, फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस. सिंपली आप देखते चले जाएंगे, क्लियर हो जाएगा. अगर ये पे है तो रिसिप्ट पे का है कि नहीं है, और प्रीवियस पेमेंट जो दिया गया था, पे अलाउंस जो प्रीवियस दिया गया था, वो सही में कंसर्न पर्सन को पे हो गया था कि नहीं पे हो गया था, ऑन डिसबर्स तो नहीं है. अगर लीव सैलरी एंड पेंशन है देन ओनली द रिसिप्ट इज नेसेसरी, यानी प्री रिसिप्ट की जरूरत है उसके लिए. ट्रेवलिंग अलाउंस में काउंटर सिग्नेचर, टेक्निकल सर्टिफिकेट दैट द जर्नी हैज एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड बाय दिस वगैरह वगैरह, एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज एसेंशियल. ये देखिए, ये पूरा पोर्शन मैंने अलग कलर में लिया हुआ है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिट पास बिल ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैंने पहले कहा था, सच रिसिप्ट एंड सर्टिफिकेट एंड काउंटर सिग्नेचर्स. सो वो तीन ही चीजें ऑडिट देखता है, फील्ड में जाके वेरीफाई नहीं करता है. बट जैसा मैंने पहले कहा था, दिस डज नॉट प्रिवेंट द ऑडिट फ्रॉम अ टेस्ट चेक. इन अ लॉट ऑफ 20-30 bills, 4% is the norm. 4% बिल को वो लास्ट स्टेज तक चेक कर सकता है. मतलब कि अगर कोई आइटम आया तो इस्तेमाल आया, उसका रिजल्ट कहाँ है, इस स्टेज तक वो जा सकता है. सो टेस्ट चेक वो ले सकता है, बट इन जनरल व्हाइल मेकिंग द पेमेंट उसको इसी बेसिस पे काम करना. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक है. दिस डिटेक्शन एरर एंड फ्रॉड, जैसा कि मैंने कहा कि दो मेजर फंक्शन है, ठीक है. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्रॉड, एंड मेन फंक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि एक कॉमन माइंड, कॉमन सेंस से, यहां पे इस पे लिखा हुआ है कॉमन सेंस से एग्जिस्टिंग रूल को अप्लाई करके कोई भी आदमी फ्रॉड को रोक सकता है कि नहीं, ये चेक करना. कहने का मतलब है कि इस चेक के थ्रू ऑडिट दो चीजों को सिक्योर करता है. पहला, जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो सही बने हुए हैं कि नहीं, फ्रॉड को वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं. एक अनट्रेन्ड माइंड उस रूल को जस्ट इन द सेंस इट इज रिटेन अप्लाई करके फ्रॉड को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है. दूसरा वो फ्रॉड को पॉइंट आउट करता है रूल बनाने के लिए ही नहीं, एट द सेम टाइम पनिशमेंट के लिए, कि आगे एग्जामिनेशन हो उस पर पनिशमेंट हो. लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वॉल्यूमिनस रूल्स, बहुत सारे रूल्स बनाने से बेटर है एक्सेप्शंस को पकड़ो और करेक्ट करो. सो हर बार कुछ पता लगे तो एक नया रूल बना दिया, देन ऐसा उलझ जाएंगे हम रूल में कि कभी 100% रूल अप्लाई ही नहीं. So it is always better to detect fraud and handle it with hard hands. ठीक है. अगर कोई डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक है कहीं पे, कहीं लेकुना दिख रहा है तो पॉइंट आउट करेगा, और उसके लिए तो रूल्स इज एसेंशियल. सो दैट इज अ जजमेंटल डिसीजन. रूल्स बनाना है या पर्सन पनिश करना है, दैट्स अ जजमेंटल डिसीजन. चेक ऑफ बिल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेक किए जाते हैं, ठीक है. प्रिस्क्राइब फॉर्म में है कि नहीं, ड्यूली रिसिप्टेड है कि नहीं, वेदर इट इज प्रॉपरली क्लेम्ड, प्रॉपरली एक्नॉलेज्ड है कि नहीं, वेदर द बिल्स आर इन ओरिजिनल और नॉट. ठीक है. जो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है बिल पे, पर्पस वगैरह वगैरह जो राइटिंग हम छोटा सा लिखते हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में है या नहीं है, रॉ लैंग्वेज में तो नहीं लिख दिया गया है. एंड वेदर द सिग्नेचर ऑफ डीडीओ इज देयर ऑन द बिल. सब वाउचर्स अगर उसके साथ लगे हुए हैं, देन सब वाउचर डेट्स वगैरह हैं कि नहीं, साइंड है कि नहीं. सो दीज आर द कॉमन चेक्स ऑन एवरी बिल. चेक ऑफ बिल, देखिए मैंने ग्रीन में वैसे भी लिखा हुआ है, वेरी लाइकली that question might be asked from this. This has high percentage कि क्वेश्चन इससे पूछे गए कि बिल्स को कैसे चेक करते हैं, what are the common checks we apply while checking the bills. ठीक है. It should be properly filled and signed in ink. ठीक है. इंक में एक इंपॉर्टेंस है, किस इंक. हमेशा किसी चीज का कैंसिलेशन रेड इंक में होता है, और
कैंसिलेशन के बाद या तो करेक्शन या ओरिजिनल जिसमें लिखा जाएगा इट विल बी ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि एवरीवेयर जहां जरूरत ना हो हम कुछ भी रेड इंक में ना लिखें, बिकॉज रेड इंक इंडिकेट्स टू थिंग्स। फर्स्ट, स्पेशल अटेंशन दैट समथिंग हैज कैंसिल्ड, और सेकेंड, सम वेरी सीरियस इशू इज देयर। सो ऑडिट को हमेशा रेड इंक इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। तीसरा है अर्थमेटिक और एक्यूरेसी। बिल्स का हम चेक करेंगे वर्ड फिगर में सही है कि नहीं, टोटली सही है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ऑल करेक्शन ये मैंने इंक वाला बताया हुआ है, ऑल करेक्शन। एक चीज और है कि वो एक व्हाइट फ्लूइड नहीं आता है, समटाइम फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग करेक्शन वी अप्लाई दैट। दिस इज प्रोहिबिटेड, और आज नहीं 20-25 ईयर्स पहले प्रोहिबिट हो चुका है, फिर भी लोग इस्तेमाल में लाते हैं। दिस इज रेदर आई विल से दिस इज इलीगल। व्हाई? Because next time also you apply the fluid and write down something fresh there. So where is the end? Where is the end? So this is not allowed at all. कुछ भी गलत हो रेड इंक से स्ट्राइक कीजिए, ब्लू और ब्लैक इंक से राइट इट डाउन, ठीक है। एवरी सच करेक्शन इज ऑथेंटिकेटेड बाय द डीडीओ, ठीक है। बिल शुड कंटेन द प्रॉपर क्लासिफिकेशन और हेड ऑफ द अकाउंट वेयर इट इज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट है कोई डबल पेमेंट नहीं हो, फॉर दैट स्पेशल अटेंशन इज टू बी टेकन। कहीं कहीं क्या होता है कि वन पेमेंट इज टू मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्रीमेंट, ठीक है। इसको टू एग्रीमेंट क्लेम कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही पार्ट के, एक ही वर्क के एक पार्ट के लिए एक एग्रीमेंट था, दूसरे पार्ट के लिए दूसरा एग्रीमेंट था, या एक ही वर्क के लिए एक ही फॉर्म से दो तरह के एग्रीमेंट थे। एक एग्रीमेंट क्वांटिटी के लिए था, एक क्वालिटी के लिए था, ट्रूली होना एक ही चाहिए, ठीक है। सो इन दैट केसेस इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिट कि वो दोनों एग्रीमेंट को एक साथ कंसीडर करे, पार्ट में एग्रीमेंट्स को कंसीडर ना करे। दैट्स जस्ट द कॉमन सेंस, जस्ट द कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर पेमेंट किसी ऑथराइज्ड पर्सन को, इफ द पेमेंट फॉर्म कह रही है जिसको ऑर्डर दिया है कि डोंट पे टू अस बट पे टू दैट फॉर्म, सो अ प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड, एंड इन जनरली दिस शुड बी अवॉइडेड। Generally this should be avoided unless some strong reason is there. If the reason is there, with proper authority DDO will see it, check it. If the proper authority is there, he will record that on bill, और on the basis of that the audit will pass the bill, pay the bill. मैंने अभी pass the bill and pay with the bill कहा, इसमें भी एक important thing, passing the bill and paying the bill are two different words. Passing the bill is recorded by DDO. He passed the bill to the audit section for checking and payment. So he passed the bill. Pay the bill is recorded by FNM. This is a pay order. Okay, make the payment. It is final now. No revision now. Just pay it. So these are two different things, passing the bill and payment. अगर इनकम टैक्स का डिडक्शन है, that should be properly recorded. कोई अब तो खत्म हो गया है, पहले स्टाम्प लगाया जाता था रिसिप्ट के ऊपर में, now on online payment, age of online payment and all that, this is not required. Really this total portion in ICR and in other organization where ERP is in practice, for that I feel that a certain part of the audit manual should be rewritten, incorporating those portions, and also for incorporating the payment through PFMAS and TSA, all that. So more chapters are required. लेकिन जब तक वो chapters नहीं आते हैं एग्जाम पर्पस से, this is important and we have to follow this. कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसमें. Specimen signature, very important portion, very important portion. कई जगह क्या होता है कि more than one DDO होते हैं या more than one authorities होती हैं जिसके सिग्नेचर को हमको frequently डील करना पड़ता है. एंड आपको मैं एक चीज बताऊं, फ्रॉड्स फ्रीक्वेंट सिग्नेचर्स में ही होते हैं, नॉन फ्रीक्वेंट में नहीं होते। आई रिपीट, फ्रॉड के केसेस फ्रीक्वेंट सिग्नेचर, एक ही सिग्नेचर यदि दिन में 10 बार आ रहा है
तो फ्रॉड के केसेस वहां होंगे, बिकॉज दे नो दैट द ऑडिट कलर जस्ट एक बेसिक सी चीज देखेगा और जाने देगा. फॉर दैट पर्पस मैं आज भी कह सकता हूं कि एटलीस्ट 80% आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में, आईसीआर ये क्या, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर्स का सिग्नेचर, अटेस्टेड सिग्नेचर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है. लेकिन बीइंग ऑडिट क्लर्क और बीइंग एफएनएओ, आप इन्फोर्स कीजिए. यू आस्क दिस थिंग, वी विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्नेचर, एंड जब भी वो सिग्नेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, इट विल बी इन आवर प्रेजेंस, प्रॉपर्ली अटेस्टेड, एंड वी विल वेरीफाई इट. फ्लो ऑफ चेक्स, कैसे पूरे के पूरे चेक करते हैं. देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिल चेकिंग के दौरान बिल कैसे मूव करता है, कैसे चेक किया जाता है, टोटल प्रोसीजर में बी आस्क्ड. ऑडिट कलर क्या करता है, ही एग्जामिन्स द बिल, रिकॉर्ड जहां रिकॉर्ड करना है जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा. प्री चेक्स, जो प्री चेक्स बिल चेकिंग के हैं अप्लाई करेगा. ठीक है. अमाउंट पास्ट फॉर पेमेंट वर्ड्स एंड फिगर में है कि नहीं, ठीक है. एंड सेम थिंग को वो लिखेगा कि ओके, दिस अमाउंट is proposed to be paid or this amount may be allowed. ठीक है. Then JO अगेन इसी चेक को वेरीफाई करेगा. एफएनएओ वेरीफाई करेगा एट द सेम टाइम जिस रिकॉर्ड में इसने ऑडिट कर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिस रजिस्टर में, उसके साथ उसको टैली करेगा. दिस फाइनेंस ऑफिसर विल ऑल्सो चेक हर जगह इनिशियल है कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं. अगर टोटलिटी में ठीक हो, देन फाइनली डीडीओ का सिग्नेचर चेक किया जाएगा and ticking out of the bill किया जाएगा. What is ticking out of the bill? This ticking out of the bill का मतलब होता है कि this is sort of a procedure of cancelling the bill, कि अब ये पेमेंट होने जा रहा है, ये दोबारा क्लेम ना होने. So and certain vital points एक एक्सपर्ट ऑडिट का पर्सन जानता है कि कहाँ उसको जस्ट टिक आउट कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर मान लीजिए कि किसी फ्रॉड से या किसी भी कारण बस दोबारा उसको इंटरटेन करने की हालत आए, तो हम बड़े सीरियसनेस के साथ पूरा का पूरा देख सकें. ठीक है. उसके बाद साइन एंड पे ऑर्डर इज मार्क्ड एंड चेक इज ड्रॉन. अब चेक की एक मजबूरी है, चेक जो बैंक चेक होता है उसकी भी स्पेलिंग कई जगह CHECK लिखा रहता है, कई जगह द स्पेलिंग इज डिफरेंट, CHEQU. सो दोनों स्पेलिंग चलती है. मेरे प्रेजेंटेशन में भी आप दोनों स्पेलिंग्स देखेंगे. यहाँ चेक, यहाँ दूसरी वाली स्पेलिंग. हर पेमेंट एफएनएओ के ऑथराइजेशन से होता है. ठीक है. और ये पेमेंट 3 फॉर्म्स में होते हैं. ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ड्राफ्ट जो कि चेक भी जिसको हम कह सकते हैं, एंड कैश पेमेंट. लेकिन ये जो पूरे के पूरे नॉर्म बने हुए हैं ऑडिट मैनुअल में, वो केवल आपको ये चेक एंड बैंक ड्राफ्ट और थोड़ा सा कैश पेमेंट के बारे में कहते हैं. ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में कुछ कहते ही नहीं है. सो दैट इज टू बी करेक्टेड, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जामिनेशन वी हैव टू फॉलो दिस वन. FNAO, maximum 4 signatories are allowed, 4 check signatories are allowed at the institute level. FNAO will be one of that, and he is the first signatory because it is his primary responsibility to check whether the amount is written correctly and whether the check has been drawn in favor of the proper authority and all that, a proper person or all that. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है कि जिस चेक ड्रॉ होने के बाद इट शुड बी इन द सेफ कस्टडी ऑफ एफएनएओ और द पर्सन हु इज a check writer, better to call it, who writes the check. एंड जब कभी भी ये चेकबुक हैंड ओवर टेक ओवर किया जाएगा किसी को परमानेंटली, डेली डे टू डे में नहीं, तो प्रॉपर रिसिप्ट ऑफ दैट इज टेकन. राइटिंग चेक राइटर चेक को लिखता है. चेक्स पे ऑर्डर, सबसे पहले तो पे ऑर्डर बिल का चेक करता है. मेक एंट्री इन द कैश बुक एंड रिकॉर्ड स्लिप क्या है, काउंटर फाइल जो होता है चेक का, उसको रिकॉर्ड स्लिप भी कहते हैं. वहां पे भी एंट्री करता है, कैश बुक में करेगा, काउंटर फाइल में करेगा, एंड विल मार्क हिज इनिशियल. ठीक है. रिकॉर्ड चेक नंबर ऑन द बिल, जिस चेक से पेमेंट कर रहा है उसको बिल पे रिकॉर्ड करेगा. देन एफएनएओ करेक्टनेस ऑफ द चेक को
एक बार फिर से एग्जामिन करेंगे, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट पर्सन को पे हो रहा है कि नहीं, अमाउंट सही है कि नहीं, डेट सही है कि नहीं, क्रॉस्ड है कि नहीं, क्रॉस भी होना जरूरी है, क्रॉस्ड है कि नहीं. देन आफ्टर दैट द बिल इज मार्क्ड विथ चेक ड्रॉन. इसके बाद जैसे ही ये हो जाता है और वो चेक को साइन कर देते हैं, बिल पर चेक ड्रॉन लिख दिया जाता है, ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल बिल को कैंसिल कर दिया जाता है टू अवॉइड एनी डबल पेमेंट, ठीक है. और उसके बाद ये सेकेंड सिग्नेटरी को पेमेंट के लिए चेक भेज दिया जाता है. दैट द मेथड. चेक शुड बी क्रॉस्ड, मैंने पहले ही कहा है, एक्सेप्ट जो डीडीओ को हम कैश डिसबर्समेंट के लिए चेक देते हैं वो क्रॉस्ड नहीं होता है, बिकॉज कोई भी अकाउंट डीडीओ के नाम पे नहीं होता है. सो डीडीओ चेक इज ऑलवेज एन ओपन चेक. स्टॉक रजिस्टर ऑफ द चेक ये एफएनओ के कस्टडी में होता है. जैसे कि हमने सपोज कीजिए 20 checkbooks we got issued from the bank, then this will be recorded in one register and that register is called a stock register for checkbooks. ठीक है. चेकबुक अनअटेंडेड कभी भी नहीं रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम फ्रॉड के केसेस चेकबुक के अनअटेंडेड पड़े रहने के कारण. ऑलवेज कीप दिस इनटू योर ड्रॉवर. जब लिख रहे हैं तो निकाला, लिखा और फिर से अंदर, ठीक है. अच्छा, counter file of check, it is not destroyed, it is kept in safe custody unless GFR में लिखा हुआ है कितने दिन के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जब तक डिस्ट्रॉय करने का इसका पीरियड ना है. एंड ये भी देखने का जरूरत होता है कि एनी अनयूज्ड लीफ, एनी अनयूज्ड पेज ऑफ द चेक मिस तो नहीं कर रहा है. इट शुड बी देयर. यदि आपने किसी चेक को कैंसिल भी किया है, you will mark cancel, but it will be in the check or it will be in safe custody. It will not be destroyed unless finally destroy करने का competent authority से order ना हो. जब भी ये किसी दूसरी पार्टी को दिया जाता है, ठीक है, चेकबुक, तो उसका रिसीट लिया जाता है. One very important thing is there. Never hand over the check or DDO to the party. It is always sent by post. कभी भी चेकबुक आपको किसी पार्टी को नहीं देना है, एक्सेप्ट टू योर स्टाफ जो डीडीओ के थ्रू पे किया जाता है. अदरवाइज बाहर की किसी पार्टी को कोई चेकबुक, कोई चेक आपको रिटर्न चेक हैंड ओवर नहीं करना है पेमेंट का, ठीक है. डीडीओ का जो चेक होगा पर्टेनिंग टू डीडीओ शुड बी इंटर्ड इनटू द रजिस्टर विद कंप्लीट डिटेल, ठीक है. डीडीओ को जो भी चेक दिया जाएगा उसका एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि ये चेक्स डीडीओ को दिए गए हैं. कोई भी चेक यदि पेंडिंग फॉर डिस्पैच है, जैसे आज शाम को चेक लिखा गया, कल इसको डिस्पैच करना है, या 2 दिन का हॉलीडे आ रहा है उसके बाद ही डिस्पैच हो पाएगा, देन इन दैट केसेस ऑलवेज इसको बहुत ही सेफ कस्टडी में रखा जाता है. चेकबुक को, सॉरी चेक को, रिटर्न चेक को. कई बार लोग ये सोचते हैं कि चेक तो लिख दिया गया है, इसको सेफ कस्टडी में रखने की जरूरत क्या है. डुप्लीकेट चेक लिखने से पहले इट इज द ड्यूटी ऑफ एफएनओ एंड द पर्सन रिक्वेस्टिंग ऑल्सो कि वो इनकैश ना हुआ, पर्सनल जिम्मेवारी हो जाती है डुप्लीकेट चेक लिखने से पहले. सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो बिल शुड बी रिमेनिंग विदाउट पेमेंट बियॉन्ड 2 days. यानी 2 दिन के अंदर पेमेंट आपको करना ही है, बिल आपके पास आने के बाद उसको चेक करके. इन द एब्सेंस ऑफ एफएनओ, यदि किसी दूसरे ऑथराइज पर्सन को दिया जा रहा है चेकबुक, तो चेकबुक देते समय उस पर लिखा जाएगा इस डेट, उसके काउंटर फाइल साइड में, कि इस डेट को ये चेकबुक दिया गया, और जब दिया गया तो इतने लाइव लिव्स थे, लाइव लिव्स इतने थे. बाकी तो डेड लिव्स के बारे में लिखना नहीं होता, जिनके पेमेंट हो गए होते हैं डेड लिव्स है, जो रिटर्न चेक्स होते हैं लाइव लिव्स, तो उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद काउंटर फाइल की एंट्री स्टॉक रजिस्टर में हो जाती है कि भाई ये सीरियल था, एक पूरा का पूरा अगर लॉट चेकबुक का इशू हो गया है, चेक्स इशू हो गए हैं, तो काउंटर फाइल का लॉट बचेगा. तो जो स्टॉक बुक था वहां लिख दिया जाएगा कि ये लॉट वापस आ गया हमारे पास, और फिर से उसको स्टोर कर दिया जाएगा. अच्छा, बैंक से स्टेटमेंट लिया जाता है और बैंक रिकंसिलेशन मंथली बेसिस पे किया जाता है. रिपोर्ट ऑफ दिस इज सेंट टू द हेडक्वार्टर. सरप्राइज चेक ऑफ कैश, दिस इज कैरीड आउट बाय एफएनओ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट.
ये इनका अपना डिस्क्रिशन है, इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इस पॉइंट को समझिएगा। कैश को चेक करना, फिजिकल कैश जो कैशियर के पास है और कहीं भी है। समटाइम दिस हैपेंस ऑल्सो कि ऑक्शन हुआ, ऑक्शन का पैसा जो जमा हुआ, उस दिन डीडीओज ऑफिस वाज क्लोज्ड मीन ऑफिस आवर खत्म हो गया, देन द मनी वाज विद फार्म। इवन दैट मनी ऑल्सो that can any time be checked by FNO और head of the department। इसके लिए किसी competent authority के permission की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। The person handling the cash यानी कि cashier's chair should be changed after 3 to 5 years। This is mandatory। कैश बुक ये मैंने आपके ऑडिट मैनुअल में नहीं है, मैंने लिखा है। This is the first and most basic record of financial accounting, कैश बुक सबसे बेसिक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बिकॉज इट इज द कैश बुक जिससे कि आपका अकाउंट टैली होता है। इट इज द कैश बुक जिससे कि आपका बैंक स्टेटमेंट टैली होता है। दिस इज द कैश बुक जिससे कि आपके बिल्स टैली होते हैं। सो कहा जाए तो यदि कोई चौराहा है जहां से कि 4 वेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दिस इज द चौराहा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द नोडल पॉइंट जहां से कि डिफरेंट काइंड ऑफ चेक्स निकल रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट वाइटल रिकॉर्ड। अगर ये वाइटल रिकॉर्ड है तो ये सबसे ज्यादा सेफ्टी में भी होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा सेफ्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चेक बुक में देखिए 2 तरह के चेक बुक होते हैं। एक मेन कैश बुक, कैश बुक में 2 तरह के कैश बुक होते हैं। एक मेन कैश बुक है, एक सब्सिडरी कैश बुक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? मेन कैश बुक फॉर्म नंबर 5 में मेंटेन होता है और सब्सिडरी कैश बुक फॉर्म नंबर 1 में मेंटेन होता है। बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड, एंड बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होगा और जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगा वो कैश बुक फॉर्म 5 में रिकॉर्ड होगा। दैट विल बी कॉल्ड मेन कैश बुक। कैश में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, कैश में या तो बैंक से ट्रांजैक्शन हो, यानी बैंक में कैश जमा किया जा रहा हो, बैंक से कैश निकाला जा रहा हो, या डिमांड ड्राफ्ट से हो, या फिर पोस्टल ऑर्डर से हो, ये सारे के सारे सब्सिडरी कैश बुक। सो मेन कैश बुक फाइनेंस में होता है और सब्सिडरी कैश बुक लाइज विद द डीडी। एंड ऑल कैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंस कभी भी कैश में ट्रांजैक्ट नहीं करता है। इन आईसीआर सिस्टम you cannot deposit money with, you cannot submit money to the finance। अगर टीए लिया है, बचा हुआ पैसा आपको कैश में वापस करना है, you have to go to the DDO, you have to go to the DDO staff, that is cashier। फाइनेंस का कोई रोल नहीं है इसमें। सिमिलरली if you have to deposit something into the bank, before depositing you are required to obtain the permission of the FNO, and for that DDO is not authorized। you have to approach to the audit and have to get the permission that I have to deposit the amount। Similar for drawing also। So अगर ये क्लियर है then the things are very easy। नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, एक्सेप्ट डायरेक्टली। हाँ, मेन कैश बुक में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को तो लिखा ही जाता है। एट द सेम टाइम कुछ चार्जेस बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से काट लेता है, जिसको हम बाद में क्लेम करके लेते हैं। कुछ नहीं भी मिलते हैं, या कभी कभी इंटरेस्ट या कोई चीज हमारे यहाँ डायरेक्टली क्रेडिट भी कर देता है। तो इस तरह का डायरेक्ट क्रेडिट एंड डायरेक्ट डेबिट बाय द बैंक, दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक। सब्सिडरी कैश बुक हैव नो रोल हियर। ओके, कैश बुक डेली शुड टैली ऑन रिसीट एंड द पेमेंट साइड। ये साइड अकाउंटिंग में आपको बताया गया होगा। एंड ऑन मंथली बेसिस इट इज क्लोज्ड। So यहाँ tally and closed, these are 2 different words। Closed mean, tally means इस साल कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसिप्ट हुआ, लास्ट में लिखा जाएगा। क्लोज्ड इट्स इस साल शुरू में कितना पेमेंट था, अभी तक कितना पेमेंट हुआ, ठीक है। एंड द फाइनली द बैलेंस कितना बैंक में है, इतना पेमेंट हो गया, इतना बैंक में। ये मंथली बेसिस पे टैली होगा, डेली बेसिस पे टैली होगा। लेकिन क्लोजिंग का मतलब है कि मंथ के एंड में कितना बैंक में रियली बैलेंस था आपके कैश बुक के हिसाब से। आई अगेन रिपीट,
आपके कैश बुक के हिसाब से, यानी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, इफ वी आर इन द थर्ड मंथ तक कितना पैसा हमारे पास आ चुका था, कितना रिसीट हुआ था, कितना हमने चेक इशू कर दिया था और कितना बचा था। सो ये क्लोजिंग बैलेंस मंथली बेसिस पे निकाल करके सर्टिफाई करके कैश बुक में लिखना पड़ता है, एंड दिस इज टू बी इनिशियल्ड बाय द एफएम। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन में जस्ट मैंने फॉर्मूला रिपीट किया है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग अबाउट द बैंक रिकंसिलेशन, बिकॉज किसी ने भी आपको अकाउंटिंग पढ़ाया होगा, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड न्यूमेरिकल्स आने के हाई चांसेस होते हैं। बेसिकली पूरे के पूरे अगर अकाउंटिंग में हम देखें, अपनी अकाउंटिंग में, तो एक तो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है, एंड द थर्ड वन बैंक रिकंसिलेशन आता है। So always do practice of good number of questions, at least 10 to 20 questions on bank reconciliation. बैंक रिकंसिलेशन में हम टैली कराते हैं बैंक बुक बैलेंस को, सॉरी कैश बुक बैलेंस को बैंक बैलेंस में। मैंने सॉरी क्यों कहा, हमारे लिए ज्यादा ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड कौन है, हमारा कैश बुक या बैंक का पासबुक? हमारा सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड है हमारा कैश बुक। सो वी स्टार्ट विद द कैश बुक और विद द हेल्प ऑफ दीज एंट्रीज बैंक के बैलेंस पे पहुंचते हैं। बहुत क्लियरली मैंने लिखा हुआ है किस किस को प्लस करना होता है, किस किस को माइनस करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आए इन 4 हेड्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। अगर आपने डिवीजन चारों में सही किया हुआ है तो ये और ये टैली हो जाएगा, मतलब जो कैश बुक का बैलेंस होगा वहां से लेके चलिए, फाइनली आप ये चारों अगर सही क्लासिफाई कर देंगे तो जो भी बैलेंस बैंक का होना चाहिए एग्जैक्टली निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा 2 टैली और करता है, तीन तरह के टैली का काम, 3 तरह के रिकंसिलेशन का काम फाइनेंस और करता है। एसेट एंड लायबिलिटी, डीडीओ के यहां से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीडीओ इन्फॉर्म्स द फाइनेंस ऑफिस कि भाई क्या क्या एसेट एंड लायबिलिटी है, मतलब क्या क्या पेमेंट अभी ड्यू है या क्या क्या पेमेंट और आने वाला है। ठीक है, उसको अपने अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करता है। एट द सेम टाइम अपने यहाँ जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वहां भी देखता है कि ये एसेट लायबिलिटी डिफर तो नहीं कर रहा है। ठीक है, द सेकेंड थिंग, सॉरी just a second. ठीक है, नेक्स्ट या सेकेंड वन इज कि कोई भी एंट्री अगर डायरेक्ट हुई है बैंक के द्वारा तो उस एंट्री की वैलिडिटी को चेक करता है पूरा का पूरा, वहां रिकंसाइल करके देखता है कोई फ्रॉडलेंट एंट्री तो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड विड्रॉवल तो नहीं हो गया, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट तो नहीं आ गया है, वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम ऑन द मंथली बेसिस वो सारे के सारे टैली करके ये देखते। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ द लास्ट काइंड ऑफ चेक्स फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द चेक फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं बोला जाऊं तो कंसिस्टेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। या तो पूरा का पूरा एक समरी लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट चेक्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक। मैं कहूं तो अभी 7 या 8 स्लाइड्स इसमें मुझे लेने हैं, तो वेरी बिग टॉपिक, छोटा नहीं है। 7-8 स्लाइड का मतलब है कि अगर आप ऑडिट मैनुअल देखिएगा तो डबल काउंट कर लीजिए, 10 to 15 पेजेस आते हैं, तो आप उतना नहीं लिख सकते। इंपॉर्टेंट इसमें से यू शॉर्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट वन, 10-15 पॉइंट्स, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स और 10 to 15 पॉइंट्स, सबको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, दैट मच इज इनफ। अगर जनरल आता है चेक फॉर कॉन्ट्रैक्ट और सब क्वेश्चंस इसके अंदर के नहीं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग एफएनएओ एग्जामिन्स, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 299(1) के अंतर्गत प्रेसिडेंट के बिहाफ में साइन, सो एवरी परचेज इज मेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
Okay, every purchase is made on the behalf of the President of India. So कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी जब साइन होगा तो उसी बिहाफ में होगा। लेकिन ऐसा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हम हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं? नहीं, कई जगह प्रेसिडेंट का ये जो पावर है डेलीगेट होता चला जाता है। ठीक है, तो जिस लेवल पे ये पावर डेलीगेटेड है, फॉर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड इन GFR 204 ऑल्सो। ओके, अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करना, कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करना एंड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन देखना, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क हैं। फाइनेंस को या ऑडिट को यहां कुछ नहीं है। फाइनेंस एंड ऑडिट को ओनली ये देखना है कि प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूशन कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने से पहले आपसे पूछा ही जाएगा। अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम है तो उसको अवार्ड करने का प्रोसीजर सही है कि नहीं वो तो आप चेक कर चुके हैं, एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो FNO को देखना। लेकिन उसका सारा प्रोसेसिंग, अवार्डिंग, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रिसाइज, डेफिनिट, विदाउट एम्बिग्विटी एंड मिसकंस्ट्रक्शन। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के राइटिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में किस कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट थिंग, इट शुड बी प्रिसाइज, फालतू वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जिनका जरूरत है वही रहेगा। डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनिट होंगे। यू विल बी पेनलाइज्ड इन दिस सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा वर्ड अवॉइड कीजिए या स्ट्रिक्टली मत लिखिए। यू विल बी पेड दिस मच रुपीज, जेन्युइन प्राइस मत लिखिए, दिस मच रुपीज, दैट इज डेफिनेट। विदाउट एम्बिग्विटी, कोई ऐसा चीज ना लिखा गया हो जिसके की मोर देन वन मीनिंग निकले। सो क्लियर, जो भी कहना है क्लियर कहिए। एंड द लास्ट वन इज मिसकंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो हम अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, वहां बताऊंगा मैं। वो है कि नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। जैसे कि आपने नील सर्विस चार्ज पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्टिव वॉइड है, कॉन्ट्रैक्टिव वॉइड है। ठीक है, वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट थिंग। शायद परचेज जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको बताया होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट थिंग। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अगर कोई पार्टी चाहे दोनों में से तो उसको कह सकती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वॉइड होते ही हैं, उनमें परमानेंट डिफॉर्मिटी है। अगर वो एलिमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे नील सर्विस चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सो दिस इज वाइड और वाइडेबल है। जैसे कोई कंडीशन जो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, साइन तो हो गया है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है, वो वाइडेबल है। जो कंडीशन लॉ नहीं अलाउ कर रहा है किसी कारणवश, लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं तो नॉन वाइडेबल। सो मेरे ऑब्जेक्शन पे वो डिपेंड करता है, वाइडेबल, अदरवाइज इट इज वाइड। सो मिसकंस्ट्रक्शन में हमको देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड ना हो। एट द सेम टाइम स्कोप ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जितना ज्यादा हो सके रिड्यूस किया जाए। ठीक है, यही डेफिनेट को यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस इफ रिक्वायर्ड, ऑलवेज ऑब्टेन दिस। हाँ, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बिफोर अवार्डिंग लास्ट कॉन्ट्रैक्ट को आंख बंद करके साइन नहीं कीजिए। आई रिपीट, लास्ट परचेज ऑर्डर को आंख बंद करके, या जस्ट एक दो नाम तो चेंज कर देते हैं, ये तो चेंज, ऑलवेज रीड द टोटल। If it is in 10 pages, just read the 10 pages, because after every reading you have to consider whether this term or this line is applicable to this contract or not. Otherwise वो contract misconstruction में जाने के पूरे chances हैं, वाइड या वाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यदि लोएस्ट प्राइस को नहीं दिया जा रहा है, देन कॉन्ट्रैक्ट में जहां ये प्रोसीजरल चेक करते हैं वहां चेक करके देखा जाता है कि भाई लोएस्ट प्राइस को नहीं दिया गया है तो जस्टिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस इज एन इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है कि भाई आपको
20 lakhs का एक कॉन्ट्रैक्ट लिखना है. सो व्हाट विल बी द एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें, एक परचेज ऑर्डर 20 lakhs का लिखना है तो क्या क्या रहेगा. तो देखिए इसमें 1 lakh तक के कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, यू हैव टू सप्लाई दिस आइटम with this specification, brief specification for this was price on these conditions. One page order, that is enough, up to 1 lakh. From 1 lakh rupees to 25 lakh rupees, you have to write down a scope of the contract. GCC and SCC क्या होता है मैं बता रहा हूं. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा वो. सो कॉन्ट्रैक्ट के these 4 parts are there. ठीक है. What is GCC and SCC? GCC general condition of contract, SCC is a special condition of contract. जिन्होंने परचेज पढ़ाया होगा बताया होगा. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस होते हैं जो जनरल होते हैं, जैसे लेबर लॉ विल बी फॉलोड, taxes will be deducted from the source. These are general conditions. This is applicable on each and every contract. But there are specific conditions for a contract also. जैसे specification, that is a specific contract. That is the part of the special conditions of contract. Some special conditions you want to put for that contract only. Like if it is the manpower supply contract, dress condition may not be essential. But if it is a security contract, dress component is essential. Dress code is essential. So that will be recorded. So that will not be recorded in GCC. That will be recorded in SCC, a special conditions of contract. This is general conditions. Clear? Okay. If the contract is above 20 lakhs rupees, 25 lakhs rupees, sorry, then 1 page contract. 1 page contract का मतलब है covering letter type का होता है कि this contract is signed, this scope है, इस contract का ये components है, and all those papers are attached. Attachment में क्या क्या होता है? All necessary specification, GCC and SCC, a scope and a specification, offer of vendor. यहाँ देखिएगा bidding document is also a part of the contract, जो कि यहाँ और यहाँ नहीं है. 1 lakh तक में नहीं है, 1 to 25 lakhs में नहीं है. But the moment the contract value crosses 25 lakhs, the tender document itself becomes a part of the contract and letter of acceptance. So here the difference is this. Between this and this, the difference is this. The rest of the things are the same. Even up to 1 lakh rupees, letter of acceptance from the firm is not essential. Only the PO is the contract. Purchase order is the contract. If the equipment is essential, ठीक है, it is the duty of the director of the unit to see कि सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली इन्फोर्सेबल है, सही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है. उसके बाद ही मटेरियल आएगा और वो सारा ये होगा. विदाउट साइनिंग एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल शुड नॉट बी रिसीव्ड. कई बार होता है कि एक सिंपली इंटीमेशन दिया जाता है और बीड इज एक्सेप्टेड और मटेरियल आ जाता है. सो फॉर expensive equipments, costly equipments, and for valuable items, proper contract should be there. अगर AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो वेल ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वेल डिजाइन्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. फर्म जो फॉर्म लेकर के आ जाए, फर्म का जो एक परफॉर्मा होता है कि सर AMC तो इसी में साइन हम लोग कराते हैं, यू हैव नॉट अ साइन ओवर. टर्नकी वर्क का मतलब होता है कि जिसमें कई कंपोनेंट होगा. मटेरियल कंपोनेंट इज देयर, लेबर कंपोनेंट इज देयर, सर्विस कंपोनेंट इज देयर, एंड some big kind of thing is there. So turnkey contract is very essential. उसके बगैर turnkey contract नहीं हो सकता. Like furnishing of auditorium, many components are there. Furnishing will have audio video also, lighting also, chairs, stage, all those things. So this kind of contract is called turnkey contract. So contract is very essential here, because whenever you write down a contract, you write down all elements there, and when you write down the all elements, you will see that enforcing the total contract becomes very easy. So जब अगर complicated contract है तब तो complicated item है परचेज का, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता.
नेक्स्ट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी वर्क यदि करा रहे हैं, एग्रीमेंट इज एसेंशियल। यहां मैंने देखिए ब्लू में लिखा है, बिकॉज ऑडिट मैनुअल सेज एग्रीमेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एग्रीमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ ऑडिट मैनुअल से, अपना भी व्यू बताऊँ ऑडिट मैनुअल का भी, यू पीपल विल डिसाइड एंड परहैप्स दास जी लास्ट में कमेंट करेंगे इस पे। एग्रीमेंट व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट। कॉन्ट्रैक्ट, जब प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डिफरेंट स्टेजेस है। स्टेजेस में एक स्टेज है ऑफर, जैसे हम एक दूसरे को ऑफर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बदले ये करूंगा, तुम मेरे बदले ये करना। देन इट बिकम्स अ प्रॉफिट, ओके मैं ये करूंगा, तुम वो करना। देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज मीटिंग द माइंड, यानी दोनों प्रॉमिस पे एग्री कर। देन इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एग्रीमेंट में जब लीगल एंगल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये टर्म एग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज जब आप वर्क्स दे रहे हैं, और जब भी कहीं वर्क्स लिखा जाए, माइनर वर्क नहीं, हमेशा मेजर वर्क होता है। तो मेजर वर्क में इट शुड नॉट बी एग्रीमेंट, इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का 21 डेज में आ जाना चाहिए। अगर 21 डेज में नहीं आ रहा है तब ईएमडी फॉरफिट भी किया जा सकता है। कुछ जगह क्या होता है कि हम अपने आइटम को कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लाइक ट्रैक्टर, वेरी सिंपल एग्जांपल। वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर से भी हायर चार्ज दो जगह। अगर इस तरह की कोई भी चीज है तो दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज वो चार्जेस टाइमली आ रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू इंश्योर। एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक द स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ द फर्म। मैंने जो ट्रैक्टर दिया है भाई वो सही हालत में है कि नहीं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई है, frequently it will depend upon the item and the period of the contract also, and also the reputation of the firm. So frequently the stock will be verified and the payment will be received from the firm. ठीक है? If the contract is for a period of more than 5 years, any contract, then there will be a condition that on 6-month notice it is essential the contract may be cancelled. इमीडिएटली आप कैंसिल नहीं कर सकते कोई, मतलब हम बोले कि राइट नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, नो, सम पीरियड इज देयर, आफ्टर द पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट माइट बी कैंसिल। ठीक है? अच्छा, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव टेंडर और हायर टेंडर मतलब कि जहां लोएस्ट से ज्यादा को दे रहे हैं, और सम इरेगुलर प्रोसीजर इफ अडॉप्टेड, ऑडिट विल इन्फॉर्म टू द प्रॉपर अथॉरिटी। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हियर इट इज मेंशन व्हाट एवर विल बी द कॉस्ट, ओवर दैट दिस मच प्रॉफिट विल बी गिवन। वर्क्स में व्हाट एवर विल बी द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, 10% प्रॉफिट विल बी गिवन, और दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन। इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एवर विल बी द मिनिमम वेज, ओवर एंड अबव taxes, and over and above this much profit will be given. So this is cost plus contract. पहली चीज है कि cost plus contract को अवॉइड करना चाहिए, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहिए, लमसम पे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। जहां अनअवॉइडेबल हो, दिस परसेंटेज एंड फिक्स्ड अमाउंट शुड बी क्लियरली रिटन। 10% मीन 10%, 10% ऑफ व्हाट, विदाउट टैक्स और विद टैक्स। बहुत सारे डिस्प्यूट में कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए जाते हैं बिकॉज क्लियरली नहीं लिखा हुआ होता है कि विदाउट टैक्स है, विद टैक्स है। सो इट शुड बी क्लियरली रिटन। प्राइस वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब 18 मंथ से ज्यादा का होता है, पर्टिकुलरली वर्क्स रिलेटेड, देन प्राइस वेरिएशन इज एप्लीकेबल। इट इज अज्यूम दैट देयर विल बी इन्फ्लेशन, महंगाई होगी, दाम बढ़ेंगे, सो प्राइस देयर विल बी एडजस्टेड। फॉर दैट पर्पज हम बेस प्राइस किसको मानेंगे, कब के प्राइस से वेरिएशन होगा तो मानेंगे, दैट शुड बी रिटन। कितने तक के वेरिएशन को नहीं मानेंगे, 1% वेरिएशन को नहीं मानेंगे भाई, 1% से ज्यादा को मानेंगे, दैट शुड बी रिटन। ठीक है? कट ऑफ डेट, किस डेट के बाद के वेरिएशन को मानेंगे। ठीक है? मटेरियल एंड लेबर किस पे एप्लीकेबल होगा, अगर दोनों कंपोनेंट है तो बेस लेवल प्राइस बता चुका हूं। सीलिंग प्राइस ऑफ वेरिएशन किसके बाद मानेंगे, और क्या थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ परसेंटेज होगा, यानी कि 1% तक के वेरिएशन को नहीं मानेंगे, इसके बाद के वेरिएशन को मानेंगे। दीज थिंग्स शुड बी रिटन। और कैसे होगा, यदि 5%
कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है तो हम 5% ही देंगे और वी विल पे 2% और 3%, क्या देंगे, क्या इंडेक्स कैलकुलेट होगा, वगैरह वगैरह. सो दैट इंडेक्स कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ परचेज. ऑडिट ड्यूटीज हैव टू चेक कि वेरिएशन क्लॉज में ये सारी चीजें हैं कि नहीं. 18 मंथ से लंबा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो तो एप्लीकेबल होता है. हाँ, एडवांस एंड स्टेज पेमेंट का यदि प्रोविजन हो तो जो पेमेंट किया जा चुका है उस पर प्राइस वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा. इंपॉर्टेंट. इफ स्टेज पेमेंट प्रोविजन इज देयर, इट इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, and in works contract, if stage payment provision is there, then whatever payment you have made, no price variation clause will be applied. Similarly, liquidated damage आपको परचेज में बताया होगा, जिस किसी ने भी पढ़ाया हुआ होगा. लिक्विडेटेड डैमेज इज दोज डैमेज जो कि हमें हो चुका है और अब ठीक नहीं हो सकता. देयर आर टू काइंड्स ऑफ डैमेज. एक डैमेज जो हुआ और सही हो सकता है. सपोज कीजिए कि वर्क वाज गोइंग ऑन, some repair work of chair was going on and this was broken by the foam. That can be repaired. That is not liquidated. Liquidated damage is a damage जो repair नहीं हो सकता. Late delivery, वो repair नहीं हो सकता. Time cannot be repaired. So for this kind of damage, liquidated damage, essentially charge should be made and amount is written in the procurement manual and all that. What will be the percentage of that? That should essentially be charged. ठीक है. डिलीवरी डेट अगर एक्सटेंड हुआ है, then variation clause will be applicable. Because if you have extended a delivery date, you have considered now the price will vary and the contract has become old. You are signing a new contract. If variation clause is written in the extended contract, this will be payable. This will be payable. Tax and duties, whatever the tax and duty is applicable, this would be clearly written. देखिए कई जगह बड़ा भेग टर्म में लिखा हुआ होता है. Tax and duty, whatever the tax and duty will be applicable will be paid. This is unacceptable. This should clearly be written that this much percentage of GST will be applicable as TDS. As TDS, or this much percentage of GST will be paid on this item. This should clearly be written. Whatever the tax is not a valid thing. The next is warranty clause. It should be clearly written. Okay. And in warranty clause, it should clearly be written that the replacement will be at the insured location. मतलब हम मटेरियल को ले जाने और लाने का कॉस्ट नहीं देंगे. हमने जब खरीदा था तब दिया था, लेकिन नाउ इन वारंटी इट विल बी रिपेयर्ड एट माय प्लेस. ठीक है. बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड यदि इट इज नॉट कंफर्मिंग द स्पेसिफिकेशन. प्रॉपर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू सेव द कॉन्ट्रैक्ट. ये मॉनिटरिंग किस किस पॉइंट पर होती है? वेदर एनी ब्रीच ऑफ प्रोविजन हैज अकर्ड. कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म पूरा नहीं हुआ है क्या? बैंक गारंटी तो एक्सपायर नहीं कर गया, ये बहुत ज्यादा होता है. You extend the contract. Usually what happens that we extend the contract one time, two time, particularly in security contract, manpower contract, and bank guarantee expire. This should not happen. Frequently you have to check, and at least whenever you are extending the period, whenever the delivery time is being delayed, check the bank guarantee. Progress of supply or work. So these three points are incorporated while checking the performance of the contract or monitoring the contract. Proper dispute resolution or alternate dispute resolution mechanism should be provided. यदि कोई dispute हो, तो every time solution should not be find out at the court level, and what mechanism will be adopted or what alternate dispute mechanism will be adopted. ये alternate dispute resolution mechanism क्या है ये मैं बता दूं. That should be mentioned. ये alternate dispute resolution mechanism is something like bringing the two parties on some compromise or settling the matter through some judicial process but outside the court. So यदि दो पार्टीज के बीच का मैटर सेटल किया जाता है, इसको कंसिलिएशन कहते हैं.
प्रोक्योरमेंट मैनुअल में क्लियरली लिखा हुआ है, चैप्टर है पूरा कंसिलिएशन। एंड यदि it is settled outside the court adopting the judicial process, it is called arbitration. यहाँ arbitrator appoint होता है, one judge is appointed with the help of both the parties, norms and conditions are there. Just मैंने introduction दिया because ये this is a complete topic, complete subject, arbitration and conciliation. So वहां हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। Deviation from the contract requires authority not inferior than who have signed the original contract. कोई भी डेविएशन यदि होगा तो whoever has sanctioned, कम से कम उसका तो चाहिए या उससे ऊपर वाली अथॉरिटी करेगा, ठीक है। ओके, एफएनएओ इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट कॉल नहीं करते, लेकिन टेस्ट चेक में या कभी भी whenever it required वो बुला सकते हैं। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कंटिंजेंट पेमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये है, इसमें हर मंथ में बिल आए, हर मंथ में आप एग्रीमेंट मंगाए, आता नहीं। यूजुअली व्हाट ऑडिट डज दैट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट और आफ्टर 6 months, फर्स्ट पेमेंट के समय चेक कर लिया, आफ्टर 6 months चेक कर लिया, दे गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, दिस इंक्लूड्स चेक्स ऑफ 3 times। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन कैसे ऑडिट चेक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट चेक्स कि इंडेंटर ने जो इंडेंट किया था आइटम का और सर्विस का, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और टेंडर में था। ओके, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और टेंडर है कि नहीं। देन इट चेक्स कि इस एग्रीमेंट, अब इसने इंडेंट को छोड़ दिया, एग्रीमेंट को ले लिया, यहां देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से बिल बना है कि नहीं। परफॉर्मेंस तो हो गया, ये बिल जो बना है एग्रीमेंट के हिसाब से बना है कि नहीं, और इस बिल के हिसाब से सारी एंट्रीज स्टोर वगैरह में हुई है कि नहीं। तो बहुत प्रोसीजर इसका सिंपल है। इंडेंट को वेरीफाई किया कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई किया बिल से, और बिल को वेरीफाई किया स्टोर की एंट्री से। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो हाँ भाई, प्रोसीजर, पेमेंट का प्रोसीजर तो ठीक, पेमेंट के डायरेक्शन में हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। चेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, टेंडर एक्सेट्रा, दैट अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें ऑडिट देखता है, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, फर्म है कि नहीं, मतलब रिजिड है कि नहीं, डेफिनिट है कि नहीं, कहीं वेग टर्म में तो या एम्बिगुअस टर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, प्राइस वेरिएशन क्लॉज प्रॉपर्ली है कि नहीं, नो ओमिशन ऑफ एनी इंपॉर्टेंट क्लॉज। इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इंस्पेक्शन है, डेट है, प्लेस है, डिस्पैच इंस्ट्रक्शन, दिस विल बी डिस्पैच्ड बाय एयर, ट्रेन से तो नहीं आ गया है, नेम ऑफ कंसाइनी, कौन भेजेगा, किसी और ने तो डिलीवरी नहीं दे दी है, ऑल दैट। इंक साइंड प्रॉपरली अथॉरिटी, ठीक है, सॉरी, इंक साइंड विद प्रॉपर अथॉरिटी, हूएवर विल साइन दिस, इंक में साइन करेंगे एंड किस अथॉरिटी से साइन कर रहे हैं, अपना डेजिग्नेशन, ही विल रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर है कि नहीं, पेमेंट टू अदर पार्टी तो प्रॉपर अटॉर्नी लेटर, प्रॉपर पावर ऑफ अथॉरिटी है कि नहीं, प्रोविजन ऑफ जीएसटी वगैरह, भेग प्रोविजन तो नहीं है, जैसे मैंने कहा था व्हाट एवर द टैक्स विल बी देयर दैट विल बी पेड, जो लीगली लायबल टैक्स होगा पे किया जाएगा, इस तरह का टर्म ना हो, क्लियर लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर रिइंबर्समेंट है किसी भी तरह का तो डिस्प्रोपोर्शनेट ना हो, जैसे फ्लाइट चार्ज वगैरह कई बार बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ये ना हो। रिइंबर्समेंट के लिए देखना पड़ता है कि जो सही हो वही रिइंबर्स किया जाए, एंड इट इज बेटर टू मेंशन रिइंबर्समेंट की भी एक लिमिट, इससे ज्यादा रिइंबर्समेंट नहीं होता, कम एटलीस्ट यू विल बी नोइंग, और एटलीस्ट इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस लिमिट। एडिशनल चेक्स, सम एडिशनल चेक्स आर देयर, ऑल प्री रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मेट और नॉट, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, ये रियली वाइड कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। किसी माइनर के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है खुद माइनर तो नहीं है, अंडर एज तो नहीं है, दैट्स व्हाई वी आस्क द आधार सर्टिफिकेट, एड्रेस और उसके लिए आधार सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमाउंट प्लस फॉर्म प्लस डिफॉल्ट प्लस पेनाल्टी, ये सारी चीजें सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्लियरली लिखी हुई है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट आईसीआर के बिहाफ में ही होना चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। आई थिंक या लास्ट 3 slides आर देयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ द फ्रॉड इज डिटेक्टेड, और ये
रियली बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली लिखा हुआ है। ये चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में मिले तो बीइंग एन ऑडिट ऑफिसर, बीइंग अ फाइनेंस ऑफिसर, हमेशा आपका अटेंशन रहना चाहिए। इफ कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का कोई आइटम सप्लाई हो गया, डेफिनेटली फ्री में तो देगा नहीं, ही विल चार्ज। यदि फ्री में दे रहा है तो डिक्लेरेशन लीजिए कम से कम, ही विल चार्ज, ठीक है। यदि कॉन्ट्रैक्ट से हायर प्राइस पे कोई आइटम की डिलीवरी हो रही, यदि कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है फॉर्म को, ओके, बिकॉज ऑफ दिस फ्लड दिस मच इज कंपनसेटेड, और आपका ये लॉस हो गया ना, ये कंपनसेट किया जा रहा है, ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, ये कंपनसेट किया, नो। अगर कंपनसेशन दिया जा रहा है तो चेक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस विल बी टोटली डिसअलाउड, बट चेक कीजिए, डाउट होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टिपुलेशन ऑफ एनी कंडीशन, कोई कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका कुछ एक सिंपल मीनिंग छोड़ के स्पेशल मीनिंग निकालने की कोशिश की जा रही। ऑलवेज चेक दिस। कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोसीजर हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट हो, हमेशा देखिए कॉस्ट की लिमिट लिखी हुई है कि नहीं, ताकि आपको ये तो पता नहीं कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सो कॉस्ट लिमिट शुड बी देयर। यदि कोई फॉरेन काउंसिल का स्टॉकिस्ट है, ये क्या होता है, समटाइम वी बाय द आइटम एंड लीव द स्टॉक विद द फॉर्म। जैसे हमने सीड खरीदा कि भाई 50 टन सीड ले लिया है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तुम अपने यहाँ रखो, हम इशू कराते जाएंगे, बट ऑन दिस प्राइस, ऑन दिस फ्रीज प्राइस वी मेक द पेमेंट एंड लीव दैट इन हिज गोडाउन कि हम 6 महीने में करेंगे। अगर इस तरह का हो तो हमेशा देखिए, बिकॉज हियर देयर इज अ फेयर चांस कि फॉर्म विल सेल द आइटम, और जब आप मांगेंगे नहीं, ये बोलेगा कि गोडाउन आज बंद है, कल ले जाइए, एंड ही विल मीनवाइल अरेंज, तो कहीं वो आपके बाइंग प्राइस पे प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर रहा है। सो इट शुड बी चेक्ड, जहां भी इस तरह की चीज हो, ऑडिट शुड चेक। एक्स ग्राटिया पेमेंट, एक्स ग्राटिया का मतलब होता है मर्सी पेमेंट। तो कोई मर्सी पेमेंट तो नहीं दिया गया है, यूजुअली फ्लड वगैरह के केस में होता है, एंड कई जगह जहां मेजर फ्लड्स आए हैं, इट वाज बॉम्बे 3-4 years बैक, हियर इन पटना आल्सो द फ्लड वाज देयर। तो यदि कुछ स्टॉक है और हमने स्टोर को ऑलरेडी सर्टिफाई किया हुआ है कि स्टोर बेसमेंट में है और पानी घुस गया उसमें, तो कुछ समझिए कि एक तरह से कुछ मर्सी पेमेंट उसको दिया जाता है। अगर इस तरह का मर्सी पेमेंट है तो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। सो अगर ये चीजें हैं, देयर इज अ फेयर चांस ऑफ फ्रॉड, सो स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चेक फॉर बिल्स फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर, whether purchase is sanctioned by the competent authority. GFR rules with no purchase which requires sanction from the superior financial authority is sanctioned by a lower authority in installment. मतलब जो मैंने पहले बताया कि GFR का यह प्रोविजन कि सैंक्शन अवॉइड करने के लिए पीस मिल ना खरीदा गया हो, सो हायर अथॉरिटी का जहां सैंक्शन चाहिए वहां हायर अथॉरिटी का लेंगे। इसी में मैंने कहा था कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट में या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में, इफ द डायरेक्टर लिमिट हैज एक्सपायर्ड, डोंट वेट फॉर एक्सपायरी ऑफ द लिमिट। in the beginning when you are signing the contract, send the proposal to council for sanction. रेट चार्ज, यदि कहीं रेट बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है तो प्रॉपर है कि नहीं है। स्टेज इंस्पेक्शन है तो प्रॉपर है कि नहीं, उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह है कि नहीं है। अगर कोई रिम्बर्समेंट है तो उसके साथ प्रॉपर रिसिप्ट है कि नहीं, और रिम्बर्समेंट लिमिट इफ इट इज देयर, वेदर इट इज ऑब्जर्व्ड और नॉट। प्रिवेलिंग रेट पेमेंट कई बार कहा जाता है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट थिंग अवॉइड दिस। सेकंड, अगर आपकी मजबूरी हो ही तो प्रिवेलिंग रेट के वेरिफिकेशन के बगैर पेमेंट नहीं। सो ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू चेक दिस थिंग। यदि डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट पीरियड है, मतलब कि शुरू में इतना दिया जाएगा पेमेंट, फिर 6 मंथ के बाद इतना दिया जाएगा, इसके बाद इतना दिया जाएगा, स्टेज पेमेंट नहीं, इसको पीरियड पेमेंट कहते हैं। इफ दिस इज देयर देन प्रॉपरली अकाउंटिंग इसकी होनी चाहिए इस पीरियड की। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। एज मेंशन्ड इन GFR एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, ये दो चीजें और भी साथ में चेक करने के समय ध्यान में दी जाती हैं। एक चीज कहा जाता है बड़ा सीधा कि व्हाइल टेकिंग आउट ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम विजडम विल बी एक्सरसाइज्ड एज कैग एक्सरसाइज व्हाइल डूइंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये जस्ट एक स्टेटमेंट लीजिए, व्हाट परफॉर्मेंस ऑडिट इज देयर, कैसे करता है,
ये सारी चीजें हालांकि लिस्टेड है आपके ऑडिट मैनुअल में, लास्ट में देखिएगा, ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अपेंडिक्स 1 में. दिस इटसेल्फ इज आई थिंक 15-20 पेज डॉक्यूमेंट. क्या क्या चीज, तो अगर एकदम एक्सपर्ट लेवल नॉलेज चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई डोंट फील दैट यू आर रिक्वायर्ड टू. दैट मच इज इनफ एंड दैट्स ऑल द बेस्ट everybody. Yes, that's all. Now, sir, thank you. Thank you very much for a very detailed and brilliant presentation on auditing. Now it is over to participants. Any doubts? Anyone having any doubt? Apart from your chat box message. Hello, sir. Hello. Yeah, you. Hello, sir. Hello. Yeah. Sir, I am Rahul from Kozhikode, IAS, sir. Yeah. Sir, in some invoices, there is no signature from the party. Only seal will be there sometimes. I'm not exactly getting. From the party means they submit their claim without signature. Sometimes there will be ink signature. The party seal will be there, but signature won't be there. Is it admissible, sir? The firm, like really, frankly telling, this is not a question for this audit. This is a question for this procurement session. But I will answer. Definitely, I will answer, because purchase is always of my interest. So I will answer that. Basically, there are two things. No, while checking, while auditing. Yeah. I'm coming to that point, gentlemen. Just see. Writing your name and signing over that, these are two different things. Writing the name is equivalent to putting your stamp, seal, and signature is signature. So only seal will not complete the formality. Signature is required there. Okay? This is something like that office stamp is put over some letter and it is sent, that it is sent considering that this is sent by the director. Okay, sir. Next participant, next question. Next question, please. Sign is required. Next. Sir, in audit manual, so many checkpoints are given there, and your PPT only means that crux is there. So that order, that whole detail we have to mention. No. Really, for the purpose of this audit examination, only whatever I have written. If you have any difficulty in understanding that, you can send me the mail or message. Otherwise, that much writing and whatever explanation I have given, that's जी बड़ा अच्छा इसका एक वीडियो भी दे रहे हैं आपको YouTube पे. If you go through that, that much is enough. You have not to write down, you have not to see those circulars and all those things. कहीं अगर वैसा doubt लगे, then it is required. In general, it is not. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Any question, please? Good evening, sir. Good evening. Sir, last session में आपने कहा था कुछ questions देंगे. मैं next session में दूंगा. I promise. Okay. The next session will be the last session. जब तक पूरा audit पढ़ा ना लूं मैं, तब तक session नहीं दे पाऊंगा मैं. So next session में I will definitely. Next session will be half. I will cover 2 or 3 topics only, because it is not possible to cover all the topics. And rest I will discuss the questions only. Okay, sir. Thank you, sir. Important portions and question, and mind that these are not the guess questions at all. These are only practice. Only practice will be enough. Exactly. And how the answer will be written, that I will tell you. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Next. So I think no more question is there. ऑडिट में एक छोटा सा प्रदास जी, जस्ट समराइज करने से पहले एक चीज कहूं, आप इसको बार बार देखिए, एंड इफ पॉसिबल यू गेट द वीडियो, बेटर टू कॉल इट कि इसको बार बार सुनिए, बिकॉज इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिवीजन. यदि आप इफ यू आर वर्किंग इन ऑडिट, थिंग्स आर इजी फॉर यू. इफ यू आर नॉट वर्किंग इन ऑडिट, द ओनली सॉल्यूशन इज रिवीजन. द मोर यू विल रिवाइज, जहां डिफिकल्टी हो उसको क्लेरिफाई कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन दैट.
Okay, sir. Thank you. Thank you, sir, very much for sparing your valuable time with us. And thank you for your a very brilliant and illuminating presentation. Thank I you. think, sir. Thank you very much. Okay, sir. Now you can leave, sir. Okay. So now it is for the participants. For your information, I have already shared some question to you for a practical session which will be conducted on tomorrow. Okay, some question I have given to you. So you might have gone through those questions. If you have not, please today evening, tomorrow morning, you go through those questions, and tomorrow session will be on those question answer session. Okay, if you are having any doubt, it will be clarified. That is practical session. And on 23rd of September, that is Saturday. Saturday means holiday. That day, we are having a session on GEM, Government E-Marketplace. You might have remembered, I have shared the GEM PPT before you. And after sharing, I have also informed to you, you please go through the PPT and you please just find out any doubt or any questions relating to the GEM, and on 23rd of September it will be clarified, and the GEM session will be held on Saturday, that is 23rd of September. Timing is same, 4 to 5:15. And on 28th of September, 28th, as per the schedule, I am having one session, but I think on that day it is a holiday. I think most of the institute may be having holiday on 28, maybe. So that is why maybe we will be having no session on 28. Okay. So this is all regarding the program. We have already covered 40th session. Another 10 sessions are left. And these 10 sessions are also very, very important sessions. So I would request you, do not miss any session out of the 10 sessions. And as per the again schedule, the session validated program will be conducted on 6th of October. Now, any participants is having any suggestion? As I am to cover another 10 session only. Any suggestion for anyone? Okay. No suggestion? Sir, if possible, you may just continue the sessions with some more topics. Yeah. If possible, you may continue the. No, 6th will be valedictory. 6th will be valedictory session. After Sir, that, we'll see. Sir, if possible, that some question on BRS and balance sheet, like assignment type, if possible, please provide, sir. Question. Yes, sir. Like only means like we have a BRS for bank reconciliation, one assignment you have given. Yeah. If possible, 2-3 assignment. No, you listen. That can be given, no problem. What 2, why 2, 3? 10 questions can be given. But thing Sir, is, like that. no, but thing is that you have to actually go through one book. You should have purchased. Yeah, you should have. Means one book is also important for you on BRS. Any practical session, you should refer one book. And Sir, if which you book means like 12th standard book or 11th standard book? 12th standard is sufficient. The 12th standard book. CBSE, sir. Yeah, no problem. Wherever these sessions are there, means these subjects, means BRS, income and expenditure account, trading and profit and loss account, those book you can go through, no problem. 12th standard book. So that is enough. That is enough. Okay. Thank you, sir. Okay. Any suggestion? Okay. Today the session is closed. Tomorrow it will. Yeah. Tell. Please provide online session videos. Yeah. It will be provided. Don't worry. It will be provided. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. It is for Thank you people only. It will be provided. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. One Thank more thing, you. sir. Hello. Yeah. Whether the WhatsApp group will be deactivated after the course? No. It will be there. It will be active. But I mean, it should not be misutilized. It will be active, but it should not be misutilized. Misutilized in the sense,
No good morning, good night message, no message, nothing. Only relating to your sharing of knowledge and information for that purpose only. No good morning message. No I wish mean, message also. No Dasara Diwali message will be there. Okay, all the Okay. PDFs and all will be there. Yeah, it will be. It will not be deactivated, but provided the people should not misuse this platform. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Anyone? More multiple choice question that will be given. No, multiple choice question I have already given. So many questions I have given to you. Let us see after the closure of the program. Okay. Because yeah. Oh, that is up to ICR. Okay. Timing part. Session will be this. Your training program will be closed as per the schedule. On 6th October will be validated program. We do not know. For like you also, I do not know the date of examination. I think it may be in the month of last week of October, maybe November. I do not know. Precisely, I do not know. Okay, I cannot guess also. Okay. Again, if some repeatedly I am asking regarding course fee, those participants, those who have not given the course fees, please remit it. Once I have told you, you are not going to pay this money from your pocket. Anyway, your institute is going to reimburse this amount. You pay this amount, number one. Number two, some payment we have received, and repeatedly I am sharing those payments to whom it relates. You please inform. I do not know the whereabouts. We have received only. You please give that. You please cooperate. Okay. Thank you. Thank you very much. Now today the session is closed. Okay. Tomorrow it will be held as per the schedule. Thank you.